Students, today we are going to start our fourth lesson, that is formatting in Microsoft Word 2010. As I have Office 2013 in my laptop, so you can use any version of it, no problem at all, because commands are same in every version. Either you can use Office 7, 10 or 13, right? According to the version, you have some additional commands. That's it. No change in it. Okay. So I am going to tell you how you can open MS Word. First of all, click on Start button. After that, all programs. Then choose Microsoft Office. And from the folder of Microsoft Office, you have to click on Word, MS Word or MS Word 2013. Now click on blank document and you will find this kind of screen. The screen introduction or the main commands of the MS Word we have already covered in our last class, last standard, means third standard, right? But I am giving you a quick review of that software which we have already covered in your previous class, right, beta? So I am giving you the screen introduction first of all. The very first topmost row is called title bar. What is it? Title bar. Yes, title bar. Why we called it title bar? Because title means name and bar means a strip, यानी एक पट्टी है ऊपर तो उसको बार बोल देते हैं, right? तो और टाइटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि it contains the titles of your software, that is Word, and the document name, that is document 1. तो फाइल का नाम भी इसके ऊपर होता है और सॉफ्टवेयर का नाम भी इसके ऊपर होता है और टाइटल का मतलब भी नाम होता है ना? तो इसलिए इस एरिया का क्या नाम होता है? टाइटल बार, राइट बेटा? ओके, गुड. तो एट द राइट हैंड साइड ऑफ योर टाइटल बार वी हैव 3 मेन बटन्स. दैट इज फर्स्ट बटन इज माइनस साइन, you can notice, and its name is minimize. Whenever you want to shorten your screen, you can click on it like this. If I click on this, the software will be reduced, right, and convert into an icon on the taskbar, and from there you can click on it and you can again open it, right? Second button is, its name is restore down, but it has 2 boxes because the same button has 2 names. First name is restore down, and when I click on it, the screen will minimize but not fully minimize, and again the name of the same button is changed. This time its name is maximize. अब की बार इसका क्या नाम है? maximize. तो maximize का क्या मतलब होता है? बड़ा करना, राइट? तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, like this. I hope you understand. And the final button is cross button. This cross button's name is close. इसका नाम close है, ये क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर. इसका मतलब if we want to close the application, यानी ये सॉफ्टवेयर MS Word को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं, then we can click on it, right? तो ये 3 मेन बटन थे. इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी जाना है, लेकिन मैंने आपको फिर एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका. ओके बेटा? तो ये तो था राइट हैंड साइड की बात. अब है लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव सम मेन कमांड्स at the left hand side of the title bar as well. इसका मतलब क्या है? ये जो एरिया है, इसको एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार. अब इसका नाम को जान लो आप, क्यों बोलते हैं इसको? क्विक का मतलब होता है जल्दी, है ना? और एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाना. और टूल बार क्योंकि ये इसके ऊपर टूल बार बने हुए हैं तो ये टूल बार है. तो ऐसा टूल बार है जिसके अंदर हम वो टूल्स रख सकते हैं जिनकी हमें जल्दी जल्दी जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है. क्विकली हम यहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आपको सेव करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप जाएंगे फाइल पे, क्लिक करो और यहां से आपको सेव ढूंढना पड़ेगा, ये रहा सेव, इतना टाइम लगेगा. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है बेटा? तो ये हमारा टाइम भी बचाता है और हमारे काम के अंदर हमें हेल्प भी करता है कि हम भूल ना जाएं कि हमें सेव करना है. सामने बटन नजर आता है तो हमें बार बार ये याद आता रहता है कि वी हैव टू सेव आवर फाइल, राइट?
अब यहां पे सिर्फ दो बटन है, एक क्या है सेव और दूसरा क्या है अंडू, और साथ में एक और नजर आ रहा है, दिस इज थर्ड बटन इज रिपीट, यानी लाइक दिस। और ये साथ में एक बटन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहां से आप और भी कमांड्स लगा सकते हो। यहाँ पे देखो सारी कमांड्स है। मान लीजिए मैं यहां लगा देता हूं न्यू की भी और ओपन की भी, क्लिक किया, ये देखो एक और ऐड हो गया। उसके बाद फिर किया ओपन, एक और ऐड हो गया। फिर मैंने किया, मान लीजिए मैं यहां डालना चाहता हूं ड्रॉ टेबल, ये देखो ये ड्रॉ टेबल का बटन भी आ गया। हटाना है तो आप हटा सकते हो, ड्रॉ टेबल हटा देता हूं, ये देखो रिमूव हो गया। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू ऐड सम मोर टूल्स अबाउट द कमांड्स इन द क्विक एक्सेस टूल बार एंड रिमूव दैम। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा और, ये पूरा टाइटल बार हमने कर लिया। अगला है कुछ बॉक्सेस आपको नजर आएंगे जिनके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो नीचे की कमांड्स चेंज हो जाती हैं। दिस बार इज कोल्ड टैब, टैब बार या कमांड बार भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो ये टैब बार है। अब आप देख रहे हो जिस भी टैब पे मैं क्लिक करता हूं ये टैब्स बने हुए हैं आपके, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, है ना। कितना हुआ, फाइल को छोड़ दे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 आपके पास टैब्स आ जाते हैं। इनके अंदर सारी कमांड्स हैं एमएस वर्ड की, जो भी हम यूज करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, ये देखिए होम पे ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो इट्स कलर इज चेंज्ड, और इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं है, देखो, है ना। इसका मतलब ये सारी कमांड्स किससे रिलेटेड है, होम टैब से रिलेटेड है। व्हेन आई क्लिक ऑन इंसर्ट, नाउ यू कैन ऑब्जर्व इंसर्ट कलर इज चेंज इनटू ब्लू, फिर चेंज हो गया जैसे होम का हुआ था। अब होम के नीचे लाइन आ गई है, इसके नीचे की लाइन चली गई। इसका मतलब ये सारा सारा जो टूल बार है इसके नीचे ये इंसर्ट का है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे एंड सो ऑन। क्लियर बेटा। इसमें बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो टूल बार नजर आ रहा है जिसपे टूल्स बने हुए इतने सारे, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। क्लियर, जैसे कि रिबन होता है लंबा सा, तो इसी तरह ये भी एक लंबा सा टूल है, इसीलिए इसका नाम होता है रिबन। क्लियर बेटा। तो ये सारे टूल्स हैं, ये हो गया सारा का सारा। अब आते हैं और नीचे, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है व्हाइट कलर की, दिस इज आवर मेन एरिया इन विच वी कैन परफॉर्म आवर वर्क, यानी टाइपिंग वर्क, ड्राइंग वर्क, है ना, फॉर्मेटिंग वर्क। तो जो भी आपने काम करना है, जो भी काम करना है, तो जब काम ही करना है तो इस एरिया का नाम, जिस एरिया में वर्क करें उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग एरिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस एरिया में आप काम करोगे उसको क्या बोलोगे, वर्किंग एरिया। राइट, तो ये वर्किंग एरिया है सारा का सारा, व्हाइट शीट जो आपको नजर आ रही है, इसी पे हम लोग टाइप करने वाले हैं। अब आप देखिए एक एक शीट जो होती है उसके 4 साइड्स होते हैं, है ना। एक टॉप होता है, सेकंड इज बॉटम, थर्ड इज लेफ्ट एंड फोर्थ इज राइट साइड। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, तो चारों साइड हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड के अंदर भी हम चारों ही सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉरी, चारों ही साइड्स के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन लेके रखते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं अब आपको जूम करके भी इसको शो करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे होगा, जैसे ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस इज रूलर। जैसे आपका स्केल होता है, स्केल होता है ना आपके पास, हर एक के पास स्केल होता है, प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है, आयरन का जिसको बोल देते हो आप, ठीक है, आयरन स्केल बोलते हो, राइट। तो ये स्केल ऊपर आपके नजर आएगा, एक तो टॉप में नजर आएगा और एक आपके शीट के, आपके वर्किंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है। मैं अब जूम करके आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। ये देखिए मैं नीचे जूम कर रहा हूं और ऊपर इसकी एक बड़ी बड़ी फोटो नजर आ रही है, देखो बिल्कुल ये ऐसा ही है, उसी साइज का है जैसे आपके स्केल होता है, राइट। ये तो हुआ टॉप में। अब मैं आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, मैं माउस एरो कर रहा हूँ। अब आप देखिए ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में नजर आ रहा है आपको सारा, दिस इज आवर रूलर। तो रूलर हमारा 2 साइड हो गया। अब 4 में से 2 साइड तो ऑक्यूपाई होगी आपकी, 2 साइड तो हो गया फिक्स। बाकी के 2 साइड क्या रहेगा, बाकी के 2 साइड आपका क्या रहेगा, हाँ, बाकी के दो साइड आपका रहेगा स्क्रोल बार। क्या रहेगा, स्क्रोल बार। स्क्रोल बार क्या करता है, स्क्रोल का मतलब क्या होता है, स्क्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज को
आप बोल सकते हैं कि लपेटना किसी चीज से, है ना। जैसे कि आप लोग जाते हैं किसी क्लोथ शॉप पे जाते हो, ठीक है। वहां पे कोई मान लो आपने आपके पेरेंट ने पैंट शर्ट लेनी है, कोई कपड़ा लेना है उसका, तो वो जब भी आप जाते हो तो शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर आपको पूरे से खोल के दिखाता है कपड़ों को, है ना, कि ये वाला कपड़ा है, पूरा खोल देता है वो। और आपने देखा होगा जब जो जो कपड़े आपको पसंद नहीं आते हैं, या अगर जो पसंद भी आ जाते हैं तो उनमें से काट के आपको दे देता है, बाकी का क्या करता है, बाकी को फिर वो स्क्रॉल कर लेता है, यानी बाकी वापस लपेट लेता है। यानी जब बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है तब हमें उसको खोल के दिखाना पड़ता है और उसको फिर वापस स्क्रॉल करना पड़ता है। सेम वही काम आपको एमएस वर्ड में भी करना पड़ता है बेटा, या किसी भी सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है कि हम एक ही टाइम में पूरी स्क्रीन नहीं देख सकते, तो हमें उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है वापस, ताकि आपको वो हिस्सा नजर आ जाए जिसपे आपने काम करना है। तो स्क्रॉल बार हमारे पास दो दो साइड होंगे। एक साइड तो हमारे पास स्क्रॉल बार होगा राइट हैंड साइड में, और एक हमारी कौन सी साइड रह गई बची हुई, वो रह गई है बॉटम। तो बॉटम नीचे, तो नीचे और राइट साइड हमारे स्क्रॉल बार होंगे। ये मैं कोई एक फाइल खोल के दिखाता हूं आपको अभी। उस फाइल के अंदर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा मेरा, कि जो मैं आपको शो करना चाहता हूं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक फाइल है कोई भी, क्लियर। तो इस फाइल के अंदर ये मान लो फाइल है। अभी देखो पूरा पेज नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे लंबाई में पूरा पेज नजर नहीं आ रहा है, वर्टिकली नजर नहीं आ रहा है। तो ये स्क्रॉल बार है, देखो इसको मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये ऊपर की तरफ लिपटता चला जाता है, यानी ऊपर पैक हो रहा है, नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसको अपोजिट साइड भी आप कर सकते हो, राइट बेटा, क्लियर। ऐसे यहां से, लेकिन अभी इस तरफ से तो पूरा नजर आ रहा है, तो नीचे वाला स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगा। ये कब नजर आएगा, जब आप इसको इतना बड़ा कर दोगे। ये देखो मैंने बहुत बड़ा कर दिया अभी, अब देखो अभी नीचे वाला स्क्रॉल बार भी नजर आ गया। क्यों, क्योंकि अब चांस बन गया है कि स्क्रीन को मूव किया जाए। पहले अगर स्क्रीन पूरी आ जाती है, ये देखो जब पूरा आ जाएगा तब नीचे वाला स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। इट विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन whenever you adjust your screen into one shot, right। इस तरह से देखो एक एक ही शॉट के अंदर सारा नजर आ रहा है, तो इसलिए नीचे वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला नजर आता रहेगा आपको, ठीक है, क्लियर, गुड। चलो, अब ये हिस्सा हिस्सा हो गया आपका कौन सा, शीट के नीचे वाला। अब और थोड़ा नीचे आ जाओ, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हो पाएगा हमसे। नेक्स्ट हिस्सा क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज, नीचे देखो ये ब्लू कलर का एक और बार आ गया नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस का क्या मतलब होता है, कि कोई भी चीज कहीं पर कहां पर है, क्या ऑन है क्या ऑफ है, उस सब के बारे में ये बताना कि क्या क्या चीज जुड़ी हुई है इसके अंदर। अब आप देखिए ये नीचे अगर आप पढ़ें, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखो, ये लिखा हुआ है सेक्शन 1 पेज 3 ऑफ 6, यानी 6 पेज है टोटल, और आप अभी किस पे हैं, कर्सर कहां पे है, थर्ड पे। लाइन नंबर 18, आपका कर्सर कहां पे है, पेज नंबर 3 में भी 18 पर। कॉलम कौन सा है, 1 है। तो वर्ड्स कौन से हैं, 12 ऑफ 1724 वर्ड्स, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी फाइल के अंदर 1724 वर्ड्स हैं, और आप किस पे हो, आप 12th वर्ड पे हो अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताएगा कि इंग्लिश में है, इंसर्ट बटन ऑन है कि ऑफ है, और भी बहुत सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। और इधर थोड़ा और आगे मैं बढ़ूं तो यू कैन सी द मोड्स ऑफ इट। फर्स्ट इज रीड मोड, ये मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ये प्रिंट लेआउट, और ये आपका वेब लेआउट। ये स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए होता है जूम। ये देखो जैसे जैसे मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूं, द स्क्रीन इज enlarging, right, and by the minus sign this is reducing। तो ये रिसाइज करने के लिए है आपकी स्क्रीन को, ठीक है। तो ये नीचे वाले को हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के स्टेटस के बारे में हमें बताता है, इसलिए इसका नाम स्टेटस बार है। यानी जो भी बार है उसका नाम अगर आप ध्यान से समझ लो तो आपको उसका काम समझ में आ जाएगा, राइट, नाम से ही काम पता लग जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूं दोबारा बेटा इसको। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्क्रीन एमएस वर्ड की, ठीक है। अब मैं आपको
कुछ समय के लिए अनम्यूट कर रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि यहां तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जस्ट वेट. Now students, you can unmute yourself and if you have any kind of query you can ask. सर आपने जैसे वो न्यू का बटन दबाया वो कहाँ से दबाया था? कहां से बेटा? कौन सा डेजी? सर वो न्यू जैसे आपने वो दो आर्ट का वर्क करा था वो कैसे किया था? आर्ट का वर्क? आई एम नॉट गेटिंग यू. दोबारा पूछो बेटा, दोबारा पूछो. डेजी, बेटा आस्क सर अगेन. सर यहाँ ऊपर जो बहुत सारे ऐप आ जाते थे वो कैसे किए थे आपने? जो मैं जूम कर रहा हूं. सर नो, ये जो पहले आपने सिखाया था. कब? स्कूल में? सर नो. अभी आज ही? यस सर. ऐप तो नहीं आते बेटा कहीं भी. ये तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि ये इसके टैब्स हैं. ये वाली बात कर रहे हो? सर इससे ऊपर राइट साइड में. अच्छा, यहाँ से ये वाला यस सर. लेफ्ट साइड में? यस सर. ये यहाँ से आते हैं बेटा. ये इसका एक बटन होता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. यू कैन क्लिक ऑन इट और यहाँ पे सारी सारी ऑप्शन चूज कर सकते हो. ठीक है? ओके सर. ओके. एनीबडी एल्स? बेटा और किसने पूछना है कुछ? नो सर. कोई भी बच्चा? क्योंकि फिर उसके बाद मैं. यस सर. हाँ बोलो बेटा, पूछो पूछो पूछो. सर ये जो है ये बोलो बोलो बेटा, उससे आगे तो बोलो. ये क्या? सर आप ये बैक एक्सरसाइज भेजोगे? बेटा पहले लेसन तो स्टार्ट होने दो. ओके सर. ये बैक साइज नहीं है. ये तो सिर्फ किसी कोई भी फाइल मैंने खोल के दिखाई हुई आपको स्क्रीन के स्क्रॉल बार समझाने के लिए. ये आपकी फाइल नहीं है. ये लो, ये मैंने क्लोज कर दिया इसको. ठीक है? क्लियर है? और पूछना है बेटा किसी ने कुछ? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. इज देयर एनी क्वेरी? ओके, वेट करो. मैं जरा एक बार. अच्छा, क्वेरी नहीं है कोई भी?